راہ زندگی زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ پروگرام راہ زندگی کے سنگ میں ہوں آپ کی میزبان عظمیٰ یونس اور آپ سبھی سننے والوں کو بہت بہت سلام پیش کرتی ہوں۔ امید کرتے ہیں کہ ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ بالکل خیریت سے ہوں گے اور ہماری دعا ہے کہ آپ کا ہر دن خوشیوں سے اور محبت کی کرنوں سے منور رہے، ہر ایک معاملے میں آپ سرخرو ہوں اور آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں ہمیشہ قائم رہیں، آمین۔ سامعین، جب بھی ہمیں کوئی خوشی ملتی ہے تو ہم بہت پرجوش ہو جاتے ہیں اور جا کے اس کے بارے میں دوسروں کو بتانا شروع کر دیتے ہیں، اور کبھی کبھی ہم اس خوشی کو مناتے ہیں دوسروں کو مدعو کر کے، ان کی دعوت کر کے۔ تو خوشی کو منانے کا انداز سب کا فرق ہوتا ہے۔ ایک شخص کو میں جانتی ہوں اور ان کی بیٹی ہمیشہ فرسٹ آتی ہے، تو میں نے یہ مشاہدہ کیا کہ یہ اس معاملے میں کچھ زیادہ جشن نہیں مناتے، پارٹی وغیرہ نہیں کرتے۔ تو میں نے جب ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جب بھی یہ موقع آتا ہے میری بیٹی کے ریزلٹ کا، تو جن پیسوں سے میں نے پارٹی کرنی ہوتی ہے میں وہ پیسے لیتا ہوں، کسی غریب خاندان کو دیکھتا ہوں جن کے بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں، میں وہ پیسے لے جا کر ان کو دیتا ہوں، اس طرح سے ان کی مدد بھی ہو جاتی ہے، اور میں انہیں یہ کہتا ہوں کہ چونکہ میری بیٹی فرسٹ آئی ہے تو میں نے اپنی خوشی سے ان بچوں کو یہ تحفہ دیا ہے، اور پھر ان لوگوں کو بھی اس تحفے کو خوشی سے قبول کرنے میں آسانی ہوتی ہے، یہ بھی نہیں لگتا کہ کوئی ہماری خودداری کو ٹھیس پہنچا رہا ہے۔ تو اس طرح سے ہر کوئی اپنی خوشی کو مختلف طریقے سے مناتا ہے، اور اسی طرح سے ایک اور خاندان بھی ہے میرے جاننے والوں میں سے، تو انہوں نے کیا کیا، ان کا جب تیسرا بیٹا پیدا ہوا انہوں نے بڑی ہی شاندار تقریب کا اہتمام کیا، مہمان بڑے خوش ہوئے، جاتے ہوئے انہوں نے بڑے اچھے اچھے تبصرے دیے، اور ان لوگوں نے اس تقریب کے اہتمام کے لیے بہت زیادہ قرضہ بھی لے لیا۔ اب ہوا یوں کہ ان کے گھر میں بعد میں کھانے کے لیے کھانا بھی نہ رہا، اور وہ عورت اپنی جٹھانی کے ہاں جاتی اور ان سے کھانا لے کر آتی روز کا، اور اب اس واقعے کو 3-4 سال تو گزر چکے ہیں، لیکن وہ خاندان مالی طور پر ابھی بھی مستحکم نہیں ہو پایا اور ابھی بھی وہ مقروض ہی ہے۔ تو ہمیں اپنی خوشی کو منانا ضرور ہے لیکن حکمت کا استعمال کرنا ہے، اور بزرگوں کی اس بات کو ضرور یاد رکھنا ہے کہ جتنی چادر ہو اتنے ہی پاؤں پھیلائیں۔ جب ہم ایسا کریں گے تو مالی طور پر بھی خوشحال رہیں گے اور ذہنی پریشانیوں سے بھی آزاد رہیں گے۔ آئیے ابھی پروگرام کے آغاز میں اپنی برکت اور رہنمائی کے لیے سنتے ہیں تلاوت کلام مقدس۔ اے خداوند، زمین کے سب بادشاہ تیرا شکر کریں گے، کیونکہ انہوں نے تیرے منہ کا کلام سنا ہے، بلکہ وہ خداوند کی راہوں میں گیت گائیں گے، کیونکہ خداوند کا جلال بڑا ہے۔ کیونکہ خداوند اگر بلند و بالا ہے تو بھی خاکسار کا خیال رکھتا ہے، لیکن مغرور کو دور سے ہی پہچان لیتا ہے۔ خواہ میں دکھ میں سے گزروں تو مجھے تازہ دم کر دے گا، تو میرے دشمنوں کے قہر کے خلاف ہاتھ بڑھائے گا اور تیرا داہنا ہاتھ مجھے بچا لے گا۔ خداوند میرے لیے سب کچھ کرے گا۔ اے خداوند، تیری شفقت ابدی ہے، اپنی دستکاری کو ترک نہ کر۔ سن رہے تھے ہم تلاوت کلام مقدس، اور ہمارا خدا اس قدر مہربان ہے کہ جب بھی کوئی شخص اس کی مہربانیوں پر غور کرتا ہے تو اس کے منہ سے خدا کی حمد و ثنا کے الفاظ، اس کی تعریف جاری ہو جاتی ہے۔ آئیے ابھی ہم بھی خدا تعالیٰ ہی کی حمد و تعریف کرتے ہیں اور مل کر آج کا بابرکت سا حمدیہ گیت سنتے ہیں۔ خدایا شکر ہے تیرا، ہمیں یہ دن دکھایا ہے۔ خدایا شکر ہے تیرا، ہمیں یہ دن دکھایا ہے۔ تیرے در پر ہم آئے ہیں اور اپنا سر جھکایا ہے۔ تیرے در پر ہم آئے ہیں اور اپنا سر جھکایا ہے۔ خدایا شکر ہے تیرا، ہمیں یہ دن دکھایا ہے۔ خدایا
शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। हम अपने सारे हदिये लेकर तेरे घर में हाजिर हो, हम अपने सारे हदिये लेकर तेरे घर में हाजिर हो। कलामे पाक में तूने हमें यही सिखाया है, कलामे पाक में तूने हमें यही सिखाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है, तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। सुना हमने बाबरकत सा हमदिया गीत, और अभी आप सभी साथी प्रोग्राम का पता नोट फरमा लीजिए ताकि आप खत भेज सकें, मैसेज कर सकें और आपके खत और मैसेजेस प्रोग्राम की जीनत में इजाफे का बायस बन सकें। आप हमें फोन कॉल करेंगे जिसके लिए नंबर है 0305 33 77 310। फेसबुक आईडी है PCRM फैसलाबाद, यूट्यूब चैनल है पाकिस्तान क्रिश्चियन रिकॉर्डिंग मिनिस्ट्रीज और पोस्टल एड्रेस है प्रोग्राम राहे जिंदगी, PO बॉक्स नंबर 117 फैसलाबाद पाकिस्तान। हम उम्मीद करते हैं कि आप जरूर राब्ते में रहेंगी, और अभी जिन साथियों ने प्रोग्राम को सुनकर खूबसूरत से तबसरे किए हैं, मैसेजेस भेजे हैं, खतूत भेजे हैं, उनके खतूत और SMS को प्रोग्राम में शामिल किए चलते हैं। अमजद खान साहब फेसबुक पर तबसरा करते हैं प्रोग्राम राहे जिंदगी सुनकर, कहते हैं कि जोशवा जी की आवाज में प्रोग्राम सुना, दिल को राहत मिली, सुकून मिला हमदिया गीत सुनने से, और बाकी तमाम तर सिलसिले भी बहुत अच्छे लगे। बहुत ही उम्दा और लाजवाब प्रोग्राम है। शुक्रिया आपका अमजद खान साहब। रशीद नाज साहब कहते हैं कि जोशवा जी की आवाज में प्रोग्राम खूब रहा, सभी सिलसिलों से कुछ न कुछ सीखने को मिलता रहता है और प्रोग्राम राहे जिंदगी हमारी रहनुमाई का बायस बनता है। रशीद नाज साहब, आपका ये तबसरा सुनकर हमें बहुत खुशी हुई, आपका बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अरशद साकिब गोंदल साहब कहते हैं रियली गुड प्रोग्राम, और आप कहते हैं कि हमदिया गीत, तिलावत कलाम मुकद्दस और सभी सिलसिले उम्दा थे, लाजवाब थे, बहुत बरकत का बायस बने। आप सभी साथी जिन्होंने फेसबुक पर प्रोग्राम को सुनकर कमेंट्स किए, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। गुलाम सरवर बलोच साहब जो कि नायब सदर हैं WULO की ननकाना साहिब से आप ताल्लुक रखते हैं, आपने मैसेज भेजा कि प्रोग्राम राहे जिंदगी सुना, उज़्मा यूनुस की बहुत ही प्यारी मेजबानी में बहुत अच्छा लगा, और आप कहते हैं कि उज़्मा यूनुस एतमाद के साथ प्रोग्राम करने लग गई हैं, अच्छे लफ्जों का इंतखाब करती हैं और रोज बरोज उनकी बातों में निखार आता जा रहा है। इस बहन के लिए बहुत सी दुआएं। तो गुलाम सरवर बलोच साहब, आप हमेशा जब कभी इस्लाही तनकीद करते हैं वो भी हमारे लिए बहुत खुशी का बायस होती है, और जब कभी आप सराहते हैं उससे भी हमें तकवीयत मिलती है। तो आपने बहुत ही खूबसूरत अल्फाज में प्रोग्राम को सराहा है। इस पसंदीदगी के लिए और हमारी तकवीयत और हौसला अफजाई के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मजीद आप कहते हैं कि ड्रामा चिरागे राह भी बहुत ही बेहतरीन सिलसिला है जो कि सच्चाई पर मबनी है, और इसको सुनकर हमेशा बहुत ही बरकत मिलती है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपने राहे जिंदगी की सारी टीम को सलाम पेश किया है। गुलाम सरवर बलोच साहब, आपकी इस सारी मोहब्बत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सोहम शकील साहिबा, जिनका ताल्लुक है आवाज रेडियो लिसनर्स क्लब चक झुमरा से, आप कहती हैं कि 8 और 9 मई का प्रोग्राम यशवा जी की मेजबानी में सुना, बहुत ही अच्छा लगा। इब्तदाई गुफ्तगू बहुत दिलचस्प थी, बहुत खूबसूरत थी। तिलावत कलाम मुकद्दस, हमदिया गीत और दीगर तमाम तर सेगमेंट्स को भी आपने सराहा है और कहा है कि राहे जिंदगी
معلومات کا ایک بڑا ہی قیمتی خزانہ ہے۔ سوہم شکیل صاحبہ، آپ کے اس میسج کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ امجد خان صاحب اور ان کے ساتھ ساتھ حکیم صدیق ماکھا صاحب، نیاز احمد صاحب، ڈاکٹر ظفر بھٹا صاحب، ڈاکٹر مدثر طفیل صاحب، زبیر عباسی صاحب، ساجد خان صاحب اور عائشہ خان صاحبہ، ان سبھی نے پروگرام کو سنا ہے، میسج لکھ بھیجا ہے جس میں یہ کہتے ہیں کہ عظما یونس کی میزبانی میں پروگرام سنا اور تلاوت کلام مقدس حمدیہ گیت سن کر دل کو راحت ملی، سکون ملا، اور آپ کہتے ہیں کہ بڑا ہی اچھا لگتا ہے۔ ہمارے خطوط ردی کے ڈبے میں نہیں جاتے بلکہ آپ اسے پروگرام راہ زندگی کا حصہ بناتے ہیں۔ تو آپ سبھی ساتھی جنہوں نے مل کر یہ میسج بھیجا ہے، ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کے میسیجز اور آپ بھی ہمارے لیے بہت قابل قدر ہیں۔ جب بھی آپ میسج لکھتے ہیں ہمیں خوشی بھی ملتی ہے، تقویت بھی ملتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ میسج نہ صرف پروگرام کی زینت بنتے ہیں بلکہ یہ ہمارے دل کے بڑے قریب ہے، ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ محبتوں کے اس سلسلے کو آپ اسی طرح سے جاری رکھیں۔ آپ کے خطوط اور SMS تو پروگرام میں شامل ہو چکے۔ آئیے ابھی شہرت کی بلندیوں کو چھوتا ہوا آپ کا پسندیدہ سلسلہ جو کہ ڈرامہ چراغ راہ ہے سنتے ہیں، اور آج ہم سنیں گے حضرت یوسف کی زندگی کے حوالے سے قسط نمبر 12۔ آئیے مل کر سنتے ہیں۔ سرتاج، اب ہم کیا کریں ہم؟ کیا بتاؤں بیگم، مجھے کچھ پتا نہیں لگتا۔ بچے کی آواز سنو، وہ بھوکا ہے سرتاج۔ میں جانتا ہوں ہم سب بھوکے ہیں۔ فرعون بادشاہ کی عیش ہے، وہ ہم سب کو زندہ کھا رہا ہے۔ سرتاج، کوئی سن لے گا۔ جب ہمارے پیسے ختم ہو گئے تو اناج کی خاطر میں نے مرغیاں بیچ ڈالی، پھر ایک ایک کر کے چاروں بھیڑوں کو بھی۔ بکری لے جاؤ نا سرتاج، اسے بیچ کر اناج لاؤ۔ اچھا، لیکن جب وہ اناج بھی ختم ہو گیا پھر کچھ نہ بچے گا ہمارے پاس۔ تو کیا ہے پھر؟ بھائیو، یہ سرائے اچھی ہے، رات یہیں بسر کرتے ہیں۔ اچھا خیال ہے بھائی روبن، میں تو تھک چکا ہوں۔ ہاں، چلو سامان اتارو گدھوں سے، میں سرائے کے مالک سے بات کرتا ہوں۔ یہ مصری حاکم عجیب آدمی ہے، پہلے اس نے کہا کہ تم جاسوس ہو، شمعون کو قید میں ڈال دیا، لیکن اناج بھی بیچ دیا ہمارے آگے۔ یہی نہیں بلکہ سفر کے لیے کھانے پینے کا سامان بھی دے دیا۔ واقعی عجیب آدمی ہے۔ ذرا ادھر سے اس بوری کو پکڑو یہودا، گدھوں کے لیے کچھ اناج نکالیں۔ ٹھیک ہے روبن، میں اس طرف سے کھولتا ہوں۔ زور سے پکڑو۔ یہ کھل رہی ہے، یہ کھل گئی۔ ارے دیکھو، یہ دیکھو۔ کیا بات ہے بھائی روبن؟ دیکھو، یہ بوری کے اندر چاندی کے سکے۔ چاندی کے سکے؟ یہ بوری میں کیسے آ گئے؟ کس نے رکھا انہیں؟ ارے یہ تو اتنی ہی رقم ہے جتنی اناج کے لیے دی تھی میں نے۔ یہ تو کوئی چال لگتی ہے مجھے۔ بھائیو، آؤ واپس چلیں اور اسے واپس کریں، جلدی۔ اب بہت دیر ہو گئی ہے روبن، وہ کہیں گے تم نے چوری کی ہے۔ یہ خدا کی طرف سے ہے، خدا نے ہمارے ساتھ کیا کیا۔ سلام خدا کا شکر ہے تم گھر واپس آ گئے، لیکن شمعون کہاں ہے؟ وہ ابھی تک مصر ہی میں ہے ابا جان یعقوب، مصر کے قید خانے میں۔ قید خانے میں روبن؟ ہاں ابا جان، ہمیں اسے چھوڑ کر آنا پڑا،
उस आदमी ने जो उस मुल्क का हाकिम है हमारे साथ बहुत सख्ती की। उसने शमौन को रखकर हमें चले जाने को मजबूर कर दिया। ओह, मेरा बेटा शमौन। और ये देखिए अब्बाजान, जब रास्ते में हमने बोरी खोली तो उसमें से ये चांदी के सिक्के हमें मिले। हाँ, और अभी अभी जब हमने दूसरी बोरियां खोली तो हर बोरी में से चांदी के सिक्के निकले हैं। अनाज की बोरियों में से चांदी के सिक्के? कितनी रकम बनती है ये? बिल्कुल उतनी जितनी का हमने अनाज खरीदा अब्बाजान। क्यों? ये सब क्या हो रहा है? शमौन क्यों रह गया मिस्र में? अब्बाजान, मिस्री हाकिम ने समझा हम जासूस हैं। उसने कहा अगर तुम जासूस नहीं तो फिर अपने छोटे भाई बिन्यामीन को मिस्र लेकर आओ, फिर मैं तुम्हारा यकीन करूंगा। बिन्यामीन को लेकर वापस मिस्र जाना पड़ेगा? हाँ अब्बाजान, उसने शमौन को जमानत के तौर पर कैद में रखा है। नहीं नहीं अब्बाजान। हाँ रूबन बेटे। अब्बाजान, मेरे 2 बेटे यहाँ आपके पास हैं। अगर मैं बिन्यामीन को वापस ना लाऊं तो दोनों को मार डालना। बिन्यामीन को मेरे साथ जरूर भेज दें। मेरे बच्चे तो मर ही जाएंगे, बल्कि हम सब, अगर हम ये कोशिश ना करें। यूसुफ चला गया, शमौन भी नहीं रहा, और अब तुम बिन्यामीन को भी ले जाना चाहते हो। नहीं, तुम बिन्यामीन को नहीं ले जा सकते। नहीं, हरगिज नहीं। बिन्यामीन, बिन्यामीन, तुम अच्छे बेटे हो। तो मुझे एक अच्छा बेटा बनने दें अब्बाजान। क्या मतलब है तुम्हारा बिन्यामीन? अब्बाजान, मुझे भाइयों के साथ मिस्र को जाने दें। नहीं नहीं, हरगिज नहीं। मैं अब बच्चा तो नहीं हूँ। तुम अपनी माँ राखिल के बच्चे हो, मेरे बच्चे हो। ये ठीक है अब्बाजान, मैं हूँ, लेकिन अब मैं आदमी हूँ। मुझे भाइयों के साथ जरूर जाना चाहिए, अपने घरानों के लिए, शमौन की जिंदगी के लिए। भाई रोबन, अब तो सिर्फ 2 बोरियां रह गई हैं। हाँ यहूदा, अब ये भी खत्म हो जाएंगी। अब हम कुछ नहीं बचा सकते। मैं जानता हूं भाई रोबन, अब तक अनाज के लिए हम मिस्र के 2 फेरे लगा सकते थे। आओ यहूदा, अब्बाजान याकूब से फिर बात करते हैं। देखो, अब्बाजान और बिन्यामीन वो हैं। अब्बाजान, अब्बाजान। हाँ बेटे रूबन, आ रहा हूं। बोलो, क्या बात है? ये अब्बाजान, बस यही अनाज बाकी रह गया है। सिर्फ 2 बोरियां 100 लोगों के लिए? मैं जानता हूं, बार बार तुमसे कहा है मिस्र वापस जाओ और गल्ला खरीद कर लाओ। लेकिन अब्बाजान, हम बिन्यामीन को साथ लिए बगैर नहीं जा सकते। ये नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। अगर हम उसे लेकर ना गए तो हमें हाकिम मिस्र के सामने नहीं जाने देंगे। अब्बाजान, मुझे जाने दें ना। नहीं बिन्यामीन, तुम नहीं जाओगे। अब्बाजान, अब हम और इंतजार नहीं कर सकते। मैं अपनी जान की जमानत देता हूँ, इसकी जिम्मेदारी मुझ पर डाल दें। नहीं नहीं। फिर आप चाहते हैं हम सब मर जाएं और हमारे छोटे छोटे बच्चे और आप भी? अब्बाजान, अगर मैं बिन्यामीन को सही सलामत वापस ना लाऊं तो कसूरवार मैं ठहरूंगा। अब्बाजान, मुझे जाने दें इनके साथ। अगर कोई चारा नहीं तो ये करना ही पड़ेगा। ठीक है अब्बाजान,
हम सुबह होते ही चल पड़ेंगे। हाकिम मिस्र के लिए बेहतरीन किस्म का रोगने बिलसान ले लो, शहद, इलायची, पिस्ते और बादाम वगैरह भी। रकम भी दुगनी? मेरा मतलब वो रकम जो बोरियों से निकली थी? हाँ हाँ जरूर, शायद उन्होंने गलती से डाल दी। और बिन्यामीन का खास ख्याल रखना। खुदा मेरी हिफाजत करेगा अब्बा जान। खुदाए कादर मिस्र के हाकिम के दिल में हमारे लिए रहम डाले कि वो शमौन और बिन्यामीन को हमारे पास वापस भेज दे। आमीन। अगर मैं बे औलाद हुआ तो हुआ। सुन रहे थे हम ड्रामा चिरागे रहा, और यूं बाकी भाई अपने सबसे छोटे भाई हजरत बिन्यामीन को हजरत यूसुफ के पास ले जाने का फैसला करते हैं, जो कि उनके लिए बहुत मुश्किल फैसला था। लेकिन कभी कभी खानदानों की भलाई के लिए मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं। आइए अभी सुनते हैं सिलसिला आईना, जिसमें नोक झोंक हो रही है, दलाइल पेश किए जा रहे हैं पोशीदगी की जानिब से और रियाकारी की जानिब से। आइए इन दोनों की नोकझोंक को सुनते हैं, लुत्फानंदोज होते हैं। आईने में हम जाहिरी सूरत देखते हैं और बातिन में क्या है इससे ना आशना रहते हैं, लेकिन सोच का आईना हकीकत से आशना करता है। आज आईना क्या दिखा रहा है? पोशीदगी, अरे पोशीदगी, इस बंद कोठरी में क्या कर रही हो? जाओ जाओ रियाकारी, मुझे डिस्टर्ब मत करो। वाह भाई वाह, वैसे मैं भी ऐसी जगहों पर कोई रुकने वाली नहीं हूँ। मगर ये तो बताओ, यहाँ अकेली तुम कर क्या रही हो? मैं यहाँ पर जुबान क्यों लड़खड़ाने लगी तुम्हारी? बोलो, हिम्मत करो। अगर तुम मजबूर करती हो तो सुन लो, मैं यहाँ पर खुदा की इबादत करने वालों के लिए जगह बना रही हूँ। इबादत? और वो भी यहाँ पर? मगर उन्हें यहाँ कौन देखेगा, और फिर किसे पता चलेगा कि वो यहाँ इबादत कर रहे हैं? वो लोग दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपने खुदा को खुश करना चाहते हैं। अरे पगली पोशीदगी, उन्हें समझाओ कि पहले लोगों के सामने तो नेक काम करें, इस तरह लोग उनकी तारीफ करेंगे। अरे रियाकारी, ये तो सरासर मुनाफकत और दिखावा है। मुझे इस पर चलने की तरगीब ना दो। वाह भाई वाह, यहाँ तो भले का जमाना ही नहीं। किसी को अच्छा मशवरा दो तो वो उल्टा माइंड कर लेता है। जिसे तुम अच्छा मशवरा कह रही हो, ये उस लाल शरबत की तरह है जो रंगदार तो है मगर फीका और बेतासीर। अरे नादान पोशीदगी, यहाँ तासीर को कौन पूछता है? सब जाहिरदारी के ही पुजारी हैं। मगर खुदा जाहिरदारी और दिखावे को पसंद नहीं करता। वो पोशीदगी में दुआ करने वालों को देखता है और बदला देगा। पोशीदगी हो या जाहिरदारी, मैं तो सिर्फ एक ही बात जानती हूँ कि दुनिया में कामयाबी का राज इश्तिहारबाजी के सुनहरी असूलों में है। नहीं नहीं, ये सुनहरी असूल नहीं, ये तो वो कांटे हैं जिन्हें तुम राहों में बिखेर रही हो। अरे पगली पोशीदगी, ये कांटे नहीं, फूल हैं, फूल जिनसे दुनिया अपने दामन को खुशियों से भर लेती है। ये सब कुछ मेरी वजह से है। तुम्हारी वजह से? तुम्हारे पास है क्या जो तुम दूसरों को दे सकती हो? दुनिया की हर चीज है मेरे पास। मसलन क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास है चुंधिया देने वाली रोशनी, दुनिया की चमक दमक, बल्कि धनक के 7 रंग। नहीं नहीं रियाकारी, ये धनक के 7 रंग नहीं, रंगबाजी है, और रंगबाजी रेत का घर होता है। अरे भाई पोशीदगी, तुम्हारा जनरल नॉलेज तो बिल्कुल खत्म है। मेरी बातें रेत का घर नहीं, बल्कि बड़े बड़े बिजनेसमैन, साहूकारों और सेठों के शीश महल हैं। अरे बस करो रियाकारी, जिन्हें तुम बड़े बड़े लोग कह रही हो, ये खोखले और बगैर जड़ के दरख्त हैं जो वक्त की तेज आंधियों में गिर जाते हैं। देखो पोशीदगी, अब अगर तूने एक लफ्ज भी मेरे परस्तारों के खिलाफ बोला ना, तो मैं... क्या करोगी तुम? मैं बहुत बुरी हूँ। सुनो पोशीदगी, मैं जिसे अपने मजबूत हाथों में जकड़ लूं, वो कभी नहीं बच पाता। हिम्मत है तो बच जाओ, मैं आ रही हूँ, और मेरा अगला निशाना तुम हो। अब मेरा निशाना तुम हो। क्या हम इस बुराई के जाल से बच सकते हैं? सुन लिया हमने सिलसिला आईना, और अभी वक्त है आप सभी के पसंदीदा सेगमेंट सिलसिला मौसीकी का। तो आइए फिर आज का दिलकश सा ट्रैक मिलकर एंजॉय करते हैं।
सामाइन आगाज में हम बात कर रहे थे अपनी खुशियों को हिकमत के साथ मनाने के हवाले से। तो खुशियां मनानी जरूर है, लेकिन इस बात का ख्याल जरूर रखना है कि हम कहीं ऐसे तरीके से अपनी खुशियां ना मनाएं जिससे हमें नुकसान हो। और फिर दूसरा पहलू ये भी मद्देनजर रखना है कि अपनी खुशियों में दूसरों को शामिल भी करना है। किसी न किसी तरीके से अगर हम दूसरों की मदद कर देंगे तो ऐसा करने से हमारी खुशी जो है वो दायमी खुशी में तब्दील हो जाएगी। जब भी हम उस लम्हे के बारे में सोचेंगे हमें बड़ा ही खुशगवार एहसास होगा और खुदा की नजर में भी हम मकबूल ठहरेंगे। आइए अपने सरों को खुदा ताला के हुजूर झुकाएं और मिलकर करें दुआ। खुदावन पाक खुदा, हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं आपकी तमाम तर बरकतों के लिए। अपने सभी सामईन के लिए आपके कुदरत वाले हाथ को मांग लेते हैं। खुदावन पाक खुदा, इनके सारी मुश्किलात को दूर फरमा दीजिए, इनके हर एक काम में इन्हें बरकत दीजिए। खुदावन तमाम सामईन के लिए और इनके खानदानों के लिए बरकत और सलामती की दुआ करते हैं। हमारी इस दुआ को कबूल कीजिए, आपके पाक और कुदूस नाम से मांगते हैं, आमीन। आपकी मेजबान उज़्मा यूनुस प्रोग्राम खत्म करने की इजाजत चाहती है। खुदा हाफिज।